Hello everyone, today I, Dr. Isha Yadav, Associate Professor, Access Colleges, Kanpur, is going to take up the subject that is pharmacology. And in this subject, we are going to firstly deal with the introduction of pharmacology. So, with this name pharmacology, the first of all question which arises in the mind of all of us is that what is this pharmacology is? So, let me clarify this, that what is pharmacology? Pharmacology is the subject which deals in the study of drugs and the response of drug on the body and the body's response for the drug. That means pharmacology क्या है? ये वो सब्जेक्ट है जो किस में डील करेगा ड्रग जो कि आप ले रहे हैं, मेडिसिन जो ले रहे हैं, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर और आपकी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या एक्शन प्रोड्यूस करती है, दैट विल बी नोन एज फार्माकोलॉजी. एज यू कैन सी इन दिस डेफिनेशन ऑल्सो, फार्माकोलॉजी इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ड्रग्स के बारे में इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं और ड्रग्स का इफेक्ट चेक करते हैं. किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर. किसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं? ड्रग का इफेक्ट चेक कर रहे हैं. आफ्टर दैट हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है उस ड्रग के लिए, दैट इज नोन एज फार्माकोलॉजी. Pharmacology is a Greek word which has been a combination of two words. One is known as pharmakon, another one is known as logos. Pharmakon means a drug. Pharmakon means a drug, and logos, what does it mean? To study about drug. So by combining these two words, what the definition is coming? क्या definition निकल के आती है कि pharmacology क्या है? It is to study about the drugs is known as pharmacology. After that, pharmacology is divided into two parts. One is known as pharmacodynamic, another one is known as pharmacokinetic. We are going to take this definitions and the clarification of this in the further video. Before that, first of all, let us clarify that what is drug. Like इतनी बार मैं नाम ले रही हूँ कि drug pharmacology is a subject which is dealing in this study about the drugs, body's response about the drug. So let us first understand what is this drug is. What is drug? According to the WHO file say that drug is what? It is a substance. What is that? It is any substance which is used. Why it has been used or why it has been made? To change the physiological and pathological part of the body or the functioning of the body. That means अगर मैं आपको simple सी normal language में बताऊँ तो pharmacology में आपके drug का मतलब क्या है? Drug is any substance. Drug is what? It is any substance. Why it is made? हमने उस ड्रग को, उस मेडिसिन को क्यों बनाया है? ड्रग इज एनी सब्सटेंस विच इज इंटेंडेड फॉर व्हाट? किस लिए बनाया? फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज. वी कैन से डायग्नोस ऑल्सो. So, what is drug? Drug is any substance. Drug क्या है? कोई भी एक ऐसा substance जो किस लिए बनाया गया है? डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए. प्रिवेंट मीन्स बचाव करने के लिए. लाइक इन आवर चाइल्डहुड ओनली हमें कई सारे इंजेक्शंस, पहले ही डिजीज होता नहीं है बट इंजेक्शंस आपको दे दिए जाते हैं. लाइक पोलियो की वैक्सीन पहले दी जाती है. Why the reason behind that? Because we are preventing that disease कि ये आपको फ्यूचर में अकर ना करे. So why? What is drug? It is intended. Intended means बनाई गई. क्यों बनाई गई? प्रिवेंट करने के लिए. प्रिवेंट करना है. सेकेंडली क्या करना है? डायग्नोस करना है. डायग्नोस मीन्स पहचानने के लिए कि भाई हम किस डिजीज से, किस उससे सफर कर रहे हैं. सो दैट विल बी नोन एज द डायग्नोसिस. आफ्टर दैट इज व्हाट? इज द ट्रीटमेंट. ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, वट एवर वी आर टेकिंग, हमारा मोटिव क्या होता है? दैट वी आर गेटिंग ट्रीटेड. क्योर हो हमारा, हम जिस बीमारी से सफर कर रहे हैं वो चीज क्या हो, हमारी ठीक हो जाए. सो ड्रग इज व्हाट? इट इज एनी सब्सटेंस, एनी एजेंट विच इज मेड फॉर, prepared for preventing the disease, curing the disease or diagnosis of the disease is known as drug. So same thing is being said by WHO also that it is any substance. ये कोई भी एक substance है जिसे हमने क्यों बनाया है? Why it is used? Why it is intended?
रीजन बिहाइंड दैट इज दैट कि हमें क्या करना है, मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल मीन्स द सिस्टम ऑफ द बॉडी, द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, एंड द पैथोलॉजिकल स्टेट, दैट मीन्स जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स है या जिसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, सो दैट विल बी द पैथोलॉजिकल स्टेट. तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एजेंट जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को क्या करेगी, चेंज करेगी और उसके जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको ठीक करेगी, दैट इज नोन एज ड्रग. ऑब्वियस ही बात है, हम बीमार कब होते हैं, जब हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी हमारी बॉडी की कैपेसिटी, इतनी हीलिंग कैपेसिटी या कह सकते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि वो अपने आप को अकॉर्डिंगली कवर अप कर लेती है. जो भी डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस हमें इन्फेक्ट करेगा उससे कवर अप कर लेगी. बट जब हमारी बॉडी में किसी भी चीज का इम्बैलेंस क्रिएट होगा, कोई भी चीज कम होगी या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन द बॉडी, दैट इज गोइंग टू सेट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज और पर्सन इज डिजीज. पर्सन क्या है, वो बीमार है. सो दैट इज नोन एज ड्रग. So, as I said earlier only कि pharmacology is being divided into two parts, that is pharmacodynamic and pharmacokinetic. So, dynamic. Now I am clarifying this. What is dynamic? It is what the drug does to the body. ये पहला क्वेश्चन आपका अराइज होगा फार्माकोडायनेमिक में. दो क्वेश्चंस आपके फार्माकोलॉजी में पूछे जाएंगे जब भी हम किसी ड्रग को लेते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है और बॉडी हमारी उस ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है. तो यही चीज आपके दो पार्ट में डिवाइड है जिसे कहा गया है दैट इज डायनेमिक एंड काइनेटिक. डायनेमिक क्या कहता है कि व्हाट डज द ड्रग, जो ड्रग हमने ली है, जो मेडिसिन हमने ली है, वो क्या कर रही है, किसके साथ करेगी, ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी के साथ. दैट मीन्स डायनेमिक इज व्हाट, वो ये बताएगी कि जो हमने ड्रग ली है वो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, बॉडी उसके लिए क्या चीजें करेगी. सपोज टॉलरेंस क्रिएट कर रही है, उस बीमारी को ठीक कर रही है, टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, जो भी चीजें आएंगी वो किस में आएंगी, आपके फार्माकोडायनेमिक में. दैट मीन्स कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या क्या किया. आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट जो आपका होगा दैट इज व्हाट, फार्माकोकाइनेटिक. एज वी ऑल नो काइनेटिक मीन्स व्हाट, मूवमेंट. मूवमेंट आपका किससे रिलेट करेगा, पहले ये समझिए. सेकेंड क्वेश्चन जो होता है कि व्हाट डज द बॉडी डज टू द ड्रग. दैट मीन्स कि जो ड्रग हमने ली है उसके साथ हमारी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स शो किया. दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी उसके साथ क्या रिस्पॉन्स शो करेगी. सपोज मैंने एक टैबलेट ली, वो टैबलेट मेरे बॉडी में जब जाएगी तो वो टैबलेट के साथ मेरी बॉडी क्या क्या चीजें करेगी. फॉर एन एग्जाम्पल क्या कर सकती है, सबसे पहले क्या करेगी, सपोज एब्जॉर्ब करेगी, मैं कह सकती हूं डिसइंटीग्रेट करेगी. डिसइंटीग्रेट मीन्स जैसे ही, फॉर एन एग्जाम्पल आपने टैबलेट लिया, कोई भी नॉर्मल एक टैबलेट ली, जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाएगी आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, आपकी डिसॉल्व होगी, टूटेगी. टूटने के बाद आपकी बॉडी क्या करेगी, ये आपकी बॉडी कर रही है, आपके शरीर कर रहा है, क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब किया, ब्लड ने कहाँ होगा एब्जॉर्ब, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है. एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगी. डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कहा कि भाई उसको अब क्या करना है, चेंज होना है, उसके कॉन्स्टेंट्स को चेंज होना है फर्दर एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए. तो वो आपके क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी जहां उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा. एंड फाइनली जो भी चीजें बॉडी को रिक्वायर्ड थी उस ड्रग से, बॉडी उसको लेकर के रिमेनिंग ऑल दी थिंग्स आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, लाइक फीसेस, यूरिनेशन एक्सेट्रा के फॉर्म में. सो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं दैट इज ADME. ये फर्दर लेक्चर्स में आपको बताऊंगी कि क्या चीजें हैं. A स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन. दैट मीन्स हमारी बॉडी ने जो भी ड्रग हमने ली थी उसके साथ क्या रिस्पॉन्स शो किया, चार तरीके के रिस्पॉन्स शो करे. एक जिसको हमने कहा एब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन क्या शो करा इसने, दैट इज D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी ड्रग आई थी वो बॉडी में क्या हुई, हमारी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई. M स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स क्या हुआ, ड्रग हमारी मेटाबोलाइज होगी, वन फॉर्म सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. एंड लास्ट वन इज E, दैट इज एक्सक्रीशन. सो एज यू कैन सी कि आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या शो किया, क्या इफेक्ट शो किया,
एडीएमई का प्रोसेस शो किया। एडीएमई का प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। देयरफॉर द फार्माकोलॉजी इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक, अनदर वन इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपकी बॉडी में ड्रग जाएगी तो दो क्वेश्चंस आपके अराइज होंगे, एक कि हमारी बॉडी उसके साथ क्या कर रही है, और दूसरा कि उस ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया। ऑब्वियस सी बात है, वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी? ठीक करेगी। ठीक नहीं कर पाएगी तो कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, कुछ उसके सिम्टम्स निकल के आएंगे। तो ये किस में आ जाएगा? आपके डायनेमिक में आ जाएगा। और काइनेटिक मैंने आपको बताया है ये चार प्रोसेस को इंक्लूड करेगा, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। After this, moving further, we are going to head about the categories of the drug. Categories of drug, that means कि drugs आपकी जो medicines हैं वो कितनी category में divide की गई है। They are further divided into two parts. The one is prescription drugs, another one is known as OTC drug. I'll be clarifying everything that what is prescription drug, what is OTC drug. Prescription drug, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी दिक्कत हुई, आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने पे आप कहेंगे कि लाइक मेरे को फीवर आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, कफिंग हो रही है, खांसी आ रही है, स्नीजिंग है, जुकाम हो रखा है। ये सारे क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे सिम्टम्स। दैट मीन्स आपने डॉक्टर को क्या कहा? आपने डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताए कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। आफ्टर दिस व्हाट द डॉक्टर इज गोइंग टू डू, वो अपनी लेटर हेड, आप लोगों ने देखा होगा कि एक लेटर हेड होता है जिसपे वो लिखना स्टार्ट करता है, आपके सिम्टम्स के बेस पे ही स्टार्ट्स राइटिंग ऑन दैट। दैट मीन्स कि उसने क्या किया? आपके सिम्टम्स के बेस पे आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन मे बी पॉसिबल कि अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड करेगा। टेस्ट क्यों कर रहा है? फॉर दी डायग्नोस। डायग्नोस मीन्स पहचानने के लिए। जो भी चीजें, जो भी टेस्ट उसने कहे, फॉर व्हाट? फॉर दी डायग्नोस, कि पता चले कि जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो किस बीमारी के हैं, किस चीज के लिए। सो दैट इज व्हाट? दैट इज प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने उसको लिखा। सो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होंगी? प्रिस्क्रिप्शन इज व्हाट? अगर मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन का मीनिंग बताऊं तो प्रिस्क्रिप्शन इज एन रिटन ऑर्डर फॉर्म विच इज बीन रिटन बाय मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट। कोई डॉक्टर जिसको आप बोलते हैं कि वो पर्चा लिख रहा है, सो दैट इज नॉट पर्चा, दैट इज क्या कहेंगे हम उसको? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे। तो रिटन ऑर्डर फॉर्म विच इज डन बाय मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, और उसे लेकर के आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि भाई ये मेडिसिन है, आप इनको दे दीजिए। सो दैट इज फॉर द डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग मीन्स देना। तो वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शंस देने पे मिलेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहलाएंगी। and those medicines for which the prescription is not been required, that means कि जिन medicines के लिए आपको prescriptions की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जाकर के मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, हम जाते हैं, पैरासीटामॉल एक्सेट्रा जो है आपकी किस में आएंगी? आयोडेक्स हो गया, पैरासीटामॉल है, एवरीथिंग, दीज आर दी OTC ड्रग। व्हाट इज OTC? OTC मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग। अगर मैं OTC का फुल फॉर्म आपको बताऊं, सो दैट इज नोन एज ओवर द काउंटर ड्रग। आप मेडिकल स्टोर पर जाके काउंटर से उसके मेडिसिन को बोल करके कि लाइक मुझे मेफ्टाल स्पास्म दे दीजिए, पैरासीटामॉल, डोलो, दीज ऑल आर दी OTC मेडिसिन जिन्हें आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के है तो आप उसे नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार भी ले लें, आपको मेडिसिन मिल जरूर जाएगी। बस क्या है, अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो वो आपको टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट है। अगर मैं आपको पैरासीटामॉल का भी बताऊं तो पैरासीटामॉल आपके लिवर को डैमेज कर सकती है। ये चीजें फर्दर लेक्चर्स में हम लोग करेंगे कि क्या चीजें इनके साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे कॉज होगी, दैट विल बी प्रोसीडेड फर्दर। तो दैट मीन्स कि OTC मेडिसिन भी हम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे ही जब मन कर रहा है तब जाकर के नहीं ले सकते। बट अगर मैं आपको उस फॉर्म में बताऊं कि आपकी ड्रग्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, सो दे आर इन 2 कैटेगरी। वन इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जिसके लिए हमें रिटन ऑर्डर फॉर्म की जरूरत है, तभी हमें मेडिसिन मिलेगी मेडिकल स्टोर से। दूसरी क्या होंगी? वो जिनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हम जाकर के ऐसे ही ले सकते हैं। सो दैट आर नोन एज OTC ड्रग। उनको फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग। Next, we are moving toward the subdivision of pharmacology. Subdivision of pharmacology means what? Sub means under.
और सारे डिविजन्स किसके, फार्माकोलॉजी के। तो फार्माकोलॉजी आपका क्या हो गया, ये आपका मेन है। अब इसके अंदर और कितने डिविजन्स हैं, सब ब्रांच हम बोल सकते हैं किसकी, फार्माकोलॉजी की। पहली चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि मेन फार्माकोलॉजी कितने पार्ट में डिवाइड है, दो, फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक। सेम थिंग इज बीइंग कोटेड है, सेम चीज यहाँ आई है, काइनेटिक दैट इज फार्माकोकाइनेटिक। पहली सब ब्रांच फार्माकोकाइनेटिक किससे डील कर रही है, एडीएमई के प्रोसेस से। एडीएमई ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। कौन सा क्वेश्चन हमें इसके साथ पूछना होगा कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, जो हमने ड्रग ली है उसके साथ हमारी बॉडी ने क्या किया, दैट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट इज व्हाट, फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक्स मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि क्या चीज हुई आपके, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, जो हमने ड्रग ली थी उसने हमारी बॉडी के साथ क्या किया, क्या रिस्पॉन्स शो किया, ठीक किया उसे, नहीं किया, टॉक्सिसिटी शो करी, क्या चीज करी, कितना ड्यूरेशन हमारे उसमें बॉडी में रही, क्या कितने टाइम ड्यूरेशन का एक्शन प्रोड्यूस किया। कि सपोज हमें पेन हो रहा था, हमने पेन किलर लिया तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पेन नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा से होने लगा, तो दैट मीन्स कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारा पेन जो है वो नहीं रहा, तो दैट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या रहा, कितने कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में रही, सो दैट इज व्हाट, दैट इज फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट इज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक इज बेसिकली द क्लिनिकल एप्लीकेशन। किस चीज की क्लिनिकल एप्लीकेशन है, फार्माकोडायनेमिक की और फार्माकोकाइनेटिक की। इन दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जिसमें आपके क्या हो रहा है कि ये जो आपके ने ड्रग ली है उसने आपकी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन प्रोड्यूस करा है, क्या उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन है, किस चीज को आपको ठीक किया, उसने कैंसर ट्रीटमेंट किया, डायबिटीज, डायोरेटिक, आपके एंटी लेप्रोटिक्स, कौन सी कैटेगरी की आपकी ड्रग है, उसने किस चीज को ठीक किया, सो दैट विल बी नोन एज फार्माकोथेराप्यूटिक। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज व्हाट, इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स। एज यू कैन सी ये डील करेगा, किसके साथ डील करेगा, कंपेयर करता है। किन को कंपेयर कर रहा है, जो भी आपने मेडिसिन ली उसको क्या करेगा, सपोज करिए फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि कोई आपकी एक न्यू मेडिसिन फॉर्मुलेट हुई, न्यू मेडिसिन फॉर्मुलेट होने के बाद हमें उसकी कई सारी चीज़ों के रिजल्ट की एनालिसिस करनी होती है। लाइक हर किसी पर्सन की बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, किसी को वो मेडिसिन आपके फायदा कर सकती है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये आपके क्या है, डेटा मेंटेन करेगा कि भाई किस ड्रग का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जो भी न्यू ड्रग आपकी, वट एवर द न्यू ड्रग इज बीन डिस्कवर्ड और फॉर्मुलेटेड, दैट इज द डेटा विच इज बीन कोटेड इज गोइंग टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये आपकी बहुत डिमांडिंग ब्रांच है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जिसमें आप सारी जितनी भी मेडिसिन जो न्यू फॉर्मुलेट हो रही है, अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज कोविड-19 के कोवैक्सिन, कोविशील्ड एक्सेट्रा जो मेडिसिन आपकी बनी है, इन सभी का क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट। मार्केट में आने से पहले लॉट ऑफ पीपल के ऊपर जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, देयर नंबर, क्लिनिकल ट्रायल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस फेज 1 2 3 4 एक्सेट्रा फेजेस में डिवाइड है, जिसमें आपके ड्रग को अगर उन सारे फेजेस को पार कर लेती है, उन सारे जितने भी लोगों को उसमें लेकर के आपके देखा गया है कि उन पे क्या रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तब जाकर के उसको मार्केट में लेकर के आया जाता है। तो इसी तरीके ये किसके लिए डील करेगा, न्यू ड्रग्स विच आर बीन फॉर्मुलेटेड। नेक्स्ट वन इज टॉक्सिकोलॉजी। Toxicology, as the name only saying, toxicology is what? It is toxicity. Toxicity means कि जो ड्रग आपने ली है, जो मेडिसिन आपने ली है, उसने आपकी बॉडी में कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, कोई आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया, कौन से एडवर्स इफेक्ट। होता है कई बार कि हम कोई मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन क्या करती है, हमें एडवर्स इफेक्ट शो करती है, हमें रैशेज हो जाते हैं, हमें और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो दीज आर व्हाट, दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी की उस जो मेडिसिन है वो आपको क्या नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं, तो वो आपकी फार्माकोलॉजी की सब ब्रांच में कौन सी ब्रांच कहलाएगी, टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच कहलाएगी। इसमें आप देख सकते हैं इट इज बीन मेंशन, इट डील्स विद द टॉक्सिसिटी। किसके साथ डील कर रही है, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब ही होता है जहर। तो क्या इस चीज का,
एंड पॉइजनस इफेक्ट। किस चीज का पॉइजनस इफेक्ट? ऑब्वियस ही बात है, जो ड्रग हम जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका पॉइजनस इफेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी को देखना किसके अंडर में आएगा? आपके टॉक्सिकोलॉजी के अंडर में आएगा कि जो ड्रग हमने ली है, जो मेडिसिन हमने ली है, वो हमें किस तरीके के टॉक्सिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, केमिकल जो सिम्टम्स हमें शो करेगी, और उन टॉक्सिक इफेक्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या even the treatment of poisoning is also going to come under the category of what? It is going to come under the category of toxicology. So toxicology is what? It is the sub branch of pharmacology. So what are the sub branches? Like pharmacokinetic, pharmacodynamic, pharmacotherapeutics, clinical pharmacology is there, and toxicology is there. After this, the other sub branches of pharmacology, like as you can see in other branches of pharmacology, first of all, what has been mentioned in this, that is chemotherapy. Chemotherapy is related to what? Chemotherapy is related to the treatment of irregular growth of cells which has been occurring. Irregular growth of cells, malignancy जिसको हम बोलते हैं, like आपने सुना होगा कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, they are undergoing to the process of chemotherapy चल रही है. Chemotherapy means they are completely destroying those cells which can cause the cancer. तो ये आपके क्या कर रहे हैं? ये डील कर रहा है किसके साथ? सिस्टमिक इन्फेक्शन of malignancy with the drug selected toxicity or interacting organism. That means जो selective cells हैं उन्हीं पर जाकर के एक्शन को प्रोड्यूस करेगी, पूरे बॉडी के अदर पार्ट्स को नहीं इफेक्ट करना है, ओनली दो सेल्स, दो टिश्यूज विच आर इफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. तो ये आपके किस में आ जाएगा? कीमोथेरेपी में. Next is pharmacogenetics. Pharmacogenetics is what? It is actually a single gene mediated branch of the pharmacology जो डील करती है आपके इनहेरिटेड जीन्स के ऊपर, जो आपके किस में आएगी? डिफरेंस इन दी ड्रग मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स इन दी बॉडी. इसका मतलब आपके ये हुआ कि जो भी ड्रग आप ले रहे हैं, सपोज आपकी फैमिली या हम आसपास भी देखते हैं कि भाई एक मेडिसिन मैंने ली, मुझे उसका हो सकता है फायदा हो, दूसरा कोई ले रहा है उसको उसका नुकसान हो रहा है, उसको एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसको सिम्टम्स कुछ अलग आ रहे हो सकता है उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है. लाइक मैंने अभी आपके साथ एग्जाम्पल कोट किया था, द वैक्सीन ऑफ कोविड किसी को नुकसान कर रही है, किसी को दो चांसेस बहुत कम है, कम चांसेस है कि वो अपने एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, बट किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है. सो व्हाट इज इट? दैट मीन्स कि हर पर्सन की बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर पर्सन की सारी चीजें डिफरेंट है, मैकेनिज्म डिफरेंट है, उनके जीन्स डिफरेंट है. तो ये उनके बेसिस पर एक्शन को प्रोड्यूस करती है, जिनको बोला जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग. देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द ड्रग रिस्पॉन्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इवन द मेल एंड फीमेल, द एज ऑफ द पर्सन, द वेट ऑफ द पर्सन, if the everything is affecting the response of the drug. ये चीजें क्या करेंगी? ड्रग के रिस्पॉन्स को इफेक्ट करेंगी. So that will be counted in which sub branch of pharmacology? That will be counted in the sub branch of pharmacogenetics. After this, as you can see, next one is pharmacogenomics. Pharmacogenomics is what? It is deal with the genetic makeup. ये हर एक पर्सन के जेनेटिक मेकअप, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके बेसिस पे वर्क करेगी. सो दैट विल बी काउंटेड एज द फार्माकोजेनोमिक्स ऑफ द फार्माकोलॉजी सब ब्रांच. आफ्टर दिस इज फार्माकोएपिडेमोलॉजी. That means this is the sub branch in which the large population is being counted. जो large population है उसके basis पे ये calculate किया जाता है कि उस drug का क्या risk है, उस drug के क्या effect है, क्या उसकी positivity है. So you can see in this the study of use and the effect of drug in large population. ये किसके बेसिस पे देखा जा रहा है? एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर देखा जा रहा है कि इस ड्रग के क्या पॉजिटिव्स हैं और इस ड्रग के क्या नेगेटिव्स हैं, सो दैट कि मार्केट में आपकी ड्रग को लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है. तो दैट विल बी काउंटेड इन व्हाट? फार्माको एपिडेमोलॉजी. नेक्स्ट वन इज फार्माको विजिलेंस. फार्माकोविजिलेंस इज नाउडेज वेरी प्रिवलेंट, बहुत ज़्यादा आपकी इसकी डिमांड भी है. और इसमें क्या है आपके? ये आपके पूरे डेटा को मेंटेन करता है. लाइक
जो भी पर्सन है जिसने मेडिसिन ली है वो अपने प्रॉब्लम्स बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ये चीज़ें आप सफ़र करें, मैंने ये खाया था, इसके बाद इसको लिया। तो सारी चीज़ें, हर एक पेशेंट की पर्टिकुलर फाइल प्रिपेयर होती है जिसमें उस मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें होंगी, उस पर्सन की कंप्लीट डिटेल होगी और उनके बेसिस पे उनको उसका ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा कि आपको इसकी यही डिजीज से आप पहले सफ़र कर रहे थे, इस मेडिसिन में ये चेंजमेंट की ज़रूरत है, इसमें ये चीज़ें करनी है। सो लाइक व्हाट इट इज़ फार्माकोविजिलेंस। विजिलेंस का मतलब ही होता है चेक करना। तो चेक करने की, किसको चेक करेंगे? फार्माकोलॉजी किससे डील कर रही है? ड्रग के साथ डील कर रही है, मेडिसिन के साथ डील कर रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें चेक भी किस पे करना होगा? हमें ड्रग को ही चेक करना होगा। और ड्रग को किस पे चेक करेंगे? जो पर्सन उसे ले रहा है उस पर चेक करना है। सो दिस इज व्हाट दिस डील्स विद द continuous monitoring for unwanted effects and other safety related aspects of marketed drug। जो भी ड्रग मार्केट में आ चुकी है उसके ऊपर चेक करना कि ये जो पर्सन इसने मेडिसिन को लिया है इसका क्या इस पे साइड इफेक्ट है, क्या इसके पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं, उन सारी चीजों पर नजर रखना, उन सारी चीजों का डेटा मेंटेन करना। उसके बाद उसको उसका ये भी बताना कि आप इससे कैसे ठीक हो सकते हो। दैट विल बी काउंटेड एज फार्माकोविजिलेंस। After moving towards their sources from where the information regarding the drug is being obtained, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें ड्रग्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है? कहां से हम जान सकते हैं कि ये हमारी सारी ड्रग्स हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना? सो देयर आर एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज आर देयर। One is we can say authentic, another one we can say that is non-authentic. Why it is being said कि authentic? एक है आपके ड्रग कंपेंडिया बोलते हैं जिसमें आपके किसमें क्या आएंगे? फार्माकोपियाज आएंगे और फॉर्मुलरीज आएंगे। ये फार्माकोपियाज और फॉर्मुलरीज जो होते हैं ये आपके ऑफिशियल होते हैं। इसमें आपकी सारी ड्रग्स क्या है? मेंशन है। जो आपकी ड्रग्स मेंशन है वो आपके क्या करेंगी? कौन से होते हैं? फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। देयर आर अदर फार्माकोपियाज ऑल्सो जिसमें ड्रग्स मेंशन है, उनके यूजेस, सारी चीजें लिखी हुई कि कैसे इनका फॉर्मुलेशन है। तो ये ऑफिशियली, दिस इज द ऑथेंटिक वन कि ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है कि इनमें जो चीजें हैं ये इन पे रिसर्च होगी है, ये सारी चीजें ऑथेंटिक है। नेक्स्ट आपका आ सकता है जो मैंने आपसे बोला था नॉन ऑथेंटिक। नॉन ऑथेंटिक नहीं कहेंगे हम, इसको कह सकते हैं नॉन ऑफिशियल मैरिटेडेल। दैट मीन्स ये भी आपके ड्रग्स को, उनके फॉर्मुलेस को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे ऑइंटमेंट बनना है, कौन सी मेडिसिन बननी है, उन सबको कंसिस्ट करेगा। बट जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो फार्माकोपियाज में होंगी, इसके अंदर वो भी होंगे प्लस अदर भी होंगी जिन चीज़ों को आपके ऑफिशियल फार्माकोपियाज ने या ड्रग कंपेंडिया ने नहीं इंक्लूड किया है, ये उनको भी इंक्लूड करते हैं। तो ये आपकी किस तरीके से हो सकते हैं? कौन सी फॉर्मुलरीज? दैट इज फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, जिसे हम कह सकते हैं किसने किया है? ये आपके फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की है। ऐसे ही नेशनल फॉर्मुलरी, ये आपकी कहां से है? बाय अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से। सो दिस इज व्हाट दीज, देयर आर नंबर ऑफ अदर्स आर आल्सो देयर। आई हैव कोटेड द फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस कि व्हाट इज ड्रग की इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, कहां से ले सकते हैं? टू फॉर्म से ले सकते हैं। एक ऑफिशियल कह दीजिए, एक आपके नॉन ऑफिशियल कह दीजिए। ऑफिशियल में आपके फार्माकोपियाज और अदर चीजें आ जाएंगी फॉर्मुलरीज की, जो कि ऑथेंटिक, जिसको आपको कहा गया ये ड्रग्स हैं, दीज आर बीन लिस्टेड, दिस इज द ऑथेंटिक मेथड। इस पे आपके एकदम स्टैम्पेड है कि भाई ये ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा नॉन ऑफिशियल, दैट मीन्स नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल वालों को तो कंसिस्ट करेगा ही, प्लस अदर्स जिन्हें ऑफिशियल ने इंक्लूड नहीं किया था उनको भी इंक्लूड करेगा। और इसके एग्जांपल्स में आप कर सकते हैं कौन सी चीजें है आपके? फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बाय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने जो किया है। नेशनल फॉर्मुलरी ये इंडिया की है, जो आपकी किस में आती है? नॉन ऑफिशियल मैरिटेडेल में आएगी। आफ्टर दिस लाइक ड्रग जो है आपकी, जो भी मेडिसिन है उसके नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स कि हम उसको कितने तरीके से उसको बुला सकते हैं, कितनी कैटेगरीज का है। तो ड्रग का नॉमेनक्लेचर जो है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक आप सुन रहे होंगे आजकल के जेनेरिक नेम से मेडिसिन मिलनी चाहिए, प्राइस एंड कॉस्ट उसका कम हो जाएगा, जन औषधि एक्सेट्रा में आपने सुना होगा कि मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम द जेनेरिक नेम। दैट मीन्स कंपनी के नेम से, ब्रांड नेम से नहीं। मेडिसिन अगर उसके कॉन्स्टेंट के बेसिस पे सेल होगी तो कॉन्स्टेंट आप देखते होंगे कि सेम कंपनी, आपकी कंपनी डिफरेंट है, कॉन्स्टेंट उस ड्रग में अगर आप चेक करेंगे पीछे से टर्न करके
तो यू विल से कि आपके क्या है, कॉन्स्टेंट सेम है, ओनली द नेम ऑफ द कंपनी इज बीन चेंज, जिसकी वजह से प्राइसेस भी हाइक करते। देयरफॉर गवर्नमेंट कह रही है कि जन औषधि जो है इन पे आप जाइए, इनसे लीजिए, जेनेरिक मेडिसिन जो है डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ जेनेरिक नेम के आप कॉन्स्टेंट के बेसिस पे कीजिए, ब्रांड नेम से नहीं कीजिए कि सिप्ला की है, ये है, आपको ये वाली लेनी है। सो दैट इज, तो ड्रग का नॉमेनक्लेचर अगर हम कहें कितने उसमें डिवाइडेड है, ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर? अ ड्रग जनरली कैटेगराइज ऑफ नेम, कितनी कैटेगरीज में ड्रग के नाम को बांटा गया है। पहला नाम जो कहता है वो है केमिकल नेम। केमिकल नेम इज व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टेंट, जो केमिकल कॉन्स्टेंट उस ड्रग में प्रेजेंट है। Chemical constant is the one which is responsible for producing the pharmacological action। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल कांस्टेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, अदर कुछ चीजें नहीं। अदर तो आप जो टैबलेट ले रहे हैं उसमें जो कांस्टेंट है वो बहुत लिमिटेड है, अदर चीजें जो मिलाई गई हैं उसको बाइंड करने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए किया, जैसे टाइल, बेंटोनाइट एक्सेट्रा डाले जाते हैं सो दैट कि उसको लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं कि उसको एक शेप, एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मुलेशन के फॉर्म में बनाया जा सके। बट जो मेन चीज है वो उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी। दैट मीन्स कि आपकी बीमारी को ठीक करेगी। तो पहले हम किस में उसको कर सकते हैं, कितने वे में उसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं? सबसे पहला नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेम, कि उस ड्रग के अंदर जो केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है उसका नाम क्या है। फॉर एन एग्जांपल, आइसोप्रोपाइल अमीनो 3,1-नेप्थॉल C प्रोपेन 2-ऑल, दिस इज द नेम फॉर व्हाट? दैट इज द नेम फॉर प्रोप्रेनॉल, नेम ऑफ द ड्रग। ये इसका केमिकल कांस्टेंट आपका है। नेक्स्ट इज व्हाट? आप ड्रग किस बेसिस पे कर सकते हैं इसको नॉमेनक्लेट कर सकते हैं? नॉन प्रोप्राइटी भी कह सकते हैं, ऑफिशियल नेम कह सकते हैं, या वो नाम जो कि क्या है आपका अप्रूव्ड नेम है, नेम इन दी ऑफिशियल बुक्स एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि नॉन प्रोप्राइटी ऑफिशियल अप्रूव्ड नेम, वो नाम जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है, और उसी नाम से वो आपकी बुक्स में, आपके रेफरेंस बुक्स में, आपके अदर जो कंपेंडिया ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल्स में मेंशन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? प्रोप्राइटरी नेम, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या? कि ब्रांड की नेम से उस ड्रग को सेल करना। फॉर एन एग्जांपल, क्रोसिन फॉर पैरासिटामोल। सो दीज आर दी वेज बाय विच द ड्रग इज बीन नॉमेनक्लेचर, जितने वे में ड्रग के नाम को लिया जा सकता है। कौन सा पहला है? पहला है केमिकल, दूसरा है नॉन प्रोप्राइटी, तीसरा आपका प्रोप्राइटी कहलाएगा। तो ये आपके क्या हुए, इतने वेज जिसमें आप ड्रग को नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। After this, moving towards the part that is pharmacodynamic। फार्माकोडायनेमिक मैंने आपको बताया था कि क्या चीज है, इफेक्ट प्रोड्यूस करना, कि वो जो ड्रग है वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ऑब्वियस ही बात है, ड्रग जो भी हम ले रहे हैं वो दो ही चीजें कर सकते हैं, इधर हमें ठीक करेगी और ठीक करने के साथ हो सकता है कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करे, कुछ ऐसे इफेक्ट शो करे जो हमें नहीं चाहिए थे, जिनको बोला जाता है एडवर्स इफेक्ट। तो दो तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं XYZ, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ एक्शन। वन इज नोन एज डिजायरेबल, अनदर वन इज नोन एज अनडिजायरेबल। डिजायरेबल जैसा कि नाम है, ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा, जो हमें चाहिए, जो इफेक्ट हमें प्रोड्यूस कराना है वो आपका होगा डिजायरेबल। अनडिजायरेबल, जो इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, जो भी हमने ड्रग ली उसका जो इफेक्ट हमें नहीं चाहिए वो क्या, किस कैटेगरी में जाएगा, अनडिजायरेबल में। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो भी आपने मेडिसिन ली है आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो आपको क्या करे, उस डिजीज से प्रिवेंट करे, बचाव करे, उस डिजीज का ट्रीटमेंट करे, उस डिजीज से क्या करे, इंप्रूव करे, और उसको क्या करना है, पहचानना है कि भाई हम किस डिजीज से सफर कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे वो इफेक्ट है जो हम किसी मेडिसिन से चाहते हैं। तो ये किस में आए, फार्माकोडायनेमिक में। अब दूसरी साइड कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, वो इफेक्ट जो हम नहीं चाहते। ऑब्वियसली कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो हम ड्रग ले रहे हैं उससे हमें रैशेज हो जाए, हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उससे हमें खांसी आने लगे, हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या हमारा ऑर्गन ही फेल हो जाए।
तो अगर इस तरीके के इफेक्ट आएंगे तो क्या किस कैटेगरी में, ये आपके आएंगे अनडिजायरेबल इफेक्ट में। अनडिजायरेबल मींस साइड इफेक्ट हो गए उसके, एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है, और टॉक्सिक इफेक्ट दैट इज द फेलियर ऑफ योर ऑर्गन अगर कॉज होता है तो ये आपके टॉक्सिसिटी को कॉज कर सकते हैं। लाइक हम लोग आज कह रहे हैं कि भाई कोविड की अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो देयर आर फ्यू साइड इफेक्ट ऑफ दैट, कि आपको फीवर आ सकता है, स्नीजिंग कफिंग हो सकती है। सो दैट आर दी सम साइड इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग जो कि आपके बाद में क्या होंगे, तो वो अनडिजायरेबल है, हमें वो इफेक्ट्स नहीं चाहिए बट वो उस मेडिसिन के साथ एसोसिएट करेंगे। सो दैट आर दी नॉर्मल साइड इफेक्ट। अब वही चीज अगर कुछ ऑपोजिट इफेक्ट शुरू कर दे तो वो किस में आ जाएगा, आपके एडवर्स इफेक्ट में। और अगर पर्सन की ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, डेथ कॉज हो जाए या कुछ ऑर्गन का फेलियर हो जाए, सो दैट इज गोइंग टू बी दी टॉक्सिसिटी, कि वो ड्रग आपके क्या होगी, जहर बन के पॉइजन कॉज कर दिया और उसने पर्सन के ऑर्गन का फेलियर भी कर दिया, तो दैट विल बी नोन एज द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि क्या चीज है, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, डज टू दी ड्रग, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। डायनेमिक आपने देखा कि क्या है भाई, हमारी बॉडी ने क्या एक्शन शो किया, डायग्नोस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, जो ड्रग हमने ली थी वो ये इफेक्ट अपने प्रोड्यूस करके गई है। किसने प्रोड्यूस किया, ये इफेक्ट ड्रग ने करा। कहाँ करा भाई, ड्रग ही ने बॉडी में हमारे इफेक्ट प्रोड्यूस किया कि जो था मैं उसको ठीक किया या कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करे। अब काइनेटिक मतलब वो जो ड्रग हमने ली है वो बॉडी ने उसके साथ क्या किया, तो बॉडी ने मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 4 तरीके की चीजें करेगी, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कह दीजिए या एलिमिनेशन कर दीजिए। एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूट जब वो आपके ब्रेक करेगी, ब्रेक करके ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जाएगी। ब्लड इज दी ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ द बॉडी। आप जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करेगा, अपने आप नहीं जाएगा। सो व्हाट इज दैट, दैट इज गोइंग टू, तो जो भी ड्रग आप ले रहे हैं पहले वो ब्लड में तो एब्जॉर्ब हो, जब ब्लड में एब्जॉर्ब होगी तभी आगे जाएगी, तो वो क्या करेगी, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद नेक्स्ट क्या करेगी, मेटाबोलाइज होगी। मेटाबॉलिज्म में कि भाई उसका एक जो फॉर्म हमने लिया था वो उसके क्या करेगा, कुछ हमारे एंजाइम्स वर्क करेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होंगे, लिपिड सॉल्युबल ड्रग आपके वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगी। सो दैट इज विल बी काउंटेड एज मेटाबोलाइज। एज वी ऑल नो कि लिवर इज द मेन साइट फॉर मेटाबॉलिज्म, लिवर आपका है। आफ्टर दैट क्या होगा, एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। और हम जानते हैं कि किडनी हमारा मेन पार्ट है जो एलिमिनेशन के प्रोसेस को कैरीड आउट करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या करेगा, ये आपके इन 4 प्रोसेसेस को कैरीड आउट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। थैंक यू एवरीवन।